Morning class 8. This is the fourth day of our online classes. In the previous classes, we have studied about the crops and the method by which we crop sow, types of crop. Now we are going to the third step of agriculture, that is adding manure and fertilizers to the field. As we all know, the crops plant need number of minerals element for their growth, which they get from the soil. As we all know, plants need minerals for their growth that they get from the soil through their root. Now repeated growing of a crop in the same field remove lots of precious minerals element, organic matter and other मटेरियल फ्रॉम द सॉइल. ये हमें पता है कि अगर हम सेम टाइप का क्रॉप्स रिपीट क्रॉप्स हमेशा करेंगे फील्ड में, मतलब जैसे गेहूं हर साल हम लगाते जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जितने मतलब न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट हैं वो सारे क्या ले लेंगे, क्रॉप्स ले लेंगे, और क्या होगा, फील्ड धीरे धीरे इनफर्टाइल हो जाएगी, मतलब अनउपजाऊ. अंडरस्टूड? फर्टाइल मीन्स उपजाऊ और अनफर्टाइल मीन्स not fit for the growth of plant. Due to this, the soil became infertile after some time and the crop yield decrease. और धीरे धीरे क्रॉप यील्ड क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा. मतलब आप फसल लगाओगे, फसल उगेगी, लेकिन फसल में उतने आपके ये क्या कहते हैं, क्रॉप्स में उतने सीड लगे, धान लगे, ये ज़रूरी नहीं है. वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो क्या होगी, ग्रोथ कम होगी. सो अनलेस द डिप्लीटेड प्लांट न्यूट्रिएंट आर पुट बैक इनटू द सॉइल, जब तक जितने लॉस हुए हैं उस न्यूट्रिएंट को वापस हम सॉइल में ना डालें टाइम टू टाइम, तो द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स वुड बी पुअर. वो क्या होगा, तो क्रॉप्स हम जो लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, उसकी ग्रोथ क्या होगी, बहुत ही खराब. द डेफिशिएंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट एंड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज मेड अप ऑफ बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. और उनकी डेफिशिएंसी कैसे मेंटेन की जाती है, बाय एडिंग manure and fertilizer to the soil. Now we are going to study about the manure. Manure are the natural fertilizer. First of all, there are some difference between fertilizer and manure. First is manure is a natural fertilizer, but manure is a natural fertilizer, whereas other is man-made fertilizer which is composed in the industries. Now manure is a natural substance obtained from the decomposition of animal waste. manure किससे बनता है, किसी भी चीज़ के, मतलब लाइक एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, ये डिकम्पोज होते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मैन्योर फॉर्म करते हैं. कैसे बनता है, मैन्योर आर प्रिपेयर फ्रॉम द एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट reduced by the action of microorganism. In order to prepare manure, farmer dumps the animal waste like animal dungs etc., the plant waste like leaves etc., in a pit and at open place and allow it to डिकम्पोज स्लोली. क्या करते हैं, पिट मतलब गड्ढा, पिट PIT, पिट मीन्स गड्ढा खोदते हैं, और उसमें क्या करेंगे, काउ डंक है, एनिमल्स डंक है, उसको डाल देंगे, या पेड़ पौधे जो पत्तियाँ गिरी हैं वो डाल देंगे, और उस गड्ढे को हल्का सा कवर कर देते हैं ऊपर से. तो स्लोली उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं और वो उसको डिकम्पोज करने लगते हैं. एंड आफ्टर डिकम्पोजिंग दैट इट्स चेंजेस इनटू, it's decomposed so slowly and it changes into manure. Understood? That is known as the decomposed animal and plant matter are used as an organic manure. Now this is the explanation of page number 7, manure and fertilizer adding. Now come to page number 8. There's some more thing to have about the manure which is on page number. Now come to page number 8. Manure contain mixture of various nutrient element and lot of organic matter. Manure में बहुत सारे mixture organic matter होते हैं that can be recycled by biomass waste or animal or plant waste. Biomass waste means animal या plant waste. Through manure, though manure are not very rich in plant nutrient like phosphorus, तो सारे क्या कहते हैं एलिमेंट उसमें नहीं, न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं. लाइक प्लांट्स को क्या क्या चाहिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारा एक साथ आपको मैन्योर में नहीं मिल सकता है. बट इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक केमिकल न्यूट्रिएंट लाइक ह्यूमस. लेकिन ये क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स न्यूट्रिएंट में फिट होता है जो कि ह्यूमस है. एंड ह्यूमस क्या होते हैं, प्रोवाइड
lots of organic matter like humus to the soil, and this humus improve the physical and chemical property of the soil. और ह्यूमस क्या करती है, सॉइल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को अच्छा करती है. मैन्योर इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर, सॉइल के टेक्सचर को बेटर करती है. द बेटर रिटेंशन ऑफ वाटर एंड एरिएशन. क्या करेंगे जब मैन्योर ऐड करते हैं तो सॉइल का टेक्सचर मतलब उसकी बनावट अच्छी होती है. उससे क्या होगा, सॉइल में क्या होगा, पोरस हो जाएगी सॉइल और ज़्यादा वाटर होल्ड कर सकेगी. एयर प्रॉपर सॉइल में जाएगा. जब एयर प्रॉपर जाएगा तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मैंने इससे पहले बताया था, जो कि फ्रंट फार्मर हमने आपको एग्जांपल देके बताया था अर्थवर्म का. तो क्या करते हैं वो सब नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लेके सॉइल में फिक्स करने का काम करते हैं. इसीलिए उनको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज. अंडरस्टूड. In fact, manure makes up the general deficiency of the nutrient in the soil. The manure is however very bulky, बहुत भारी होता है, voluminous होता है. इसलिए क्या होता है, it is inconvenient to store and transport. Understood? Manure is bulky and voluminous, that's why it is inconvenient to store and transport. Moreover, manure is not nutrient specific. किसी एक न्यूट्रिएंट का स्पेसिफिक नहीं होता है, and hence it is not much helpful when a particular nutrient is required in the soil for the particular crop. तो मैन्योर एक इसका डीमेरिट क्या है कि मैन्योर में जो है कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं, कि जैसे हमें वीट के लिए नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए तो हम मैन्योर डाल दें, तो ऐसा नहीं होता है. इसलिए क्या होता है, द केमिकल फर्टिलाइजर ऑन द अदर हैंड इज द न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक. तो उसकी जगह लोग यह कि यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर, जिसमें जो आपको न्यूट्रिएंट चाहिए वो उसमें पर्टिकुलर में मिल जाएगा. अंडरस्टूड. नाउ हैव अ लुक व्हाट आर केमिकल फर्टिलाइजर्स. Manure are not able to supply the required quantities of the essential plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. ये भी हमने आपको बताया था कि मैन्योर में ये सारे एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिल सकते. सो दे आर बी सप्लीमेंटेड विथ केमिकल फर्टिलाइजर. और ये क्या सप्लीमेंटेड में क्या रखते हैं फार्मर्स, केमिकल फर्टिलाइजर. अ केमिकल फर्टिलाइजर इज अ सॉल्ट और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये क्या होते हैं, सॉल्ट और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन अननेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट. मिल्स के बनते हैं और उसमें नेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम टू मेक द सॉइल मोर फर्टाइल. केमिकल फर्टिलाइजर्स इज रिच इन पर्टिकुलर प्लांट्स न्यूट्रिएंट. तो ये केमिकल फर्टिलाइजर क्या है, पर्टिकुलर प्लांट न्यूट्रिएंट्स उनमें होते हैं, जैसे पोटेशियम है, नाइट्रोजन है एंड फॉस्फोरस. सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर आर, कुछ एग्जाम्पल फर्टिलाइजर के. फर्टिलाइजर, लेट यू अंडरस्टैंड, मैन्योर अलग है एंड फर्टिलाइजर अलग है. कोई भी चीज, दोनों चीज़ें एक नहीं होती. हाँ, बट दोनों का काम क्या होता है कि सॉइल को फर्टाइल बनना. एक चीज़ कॉमन है दोनों में कि सॉइल को फर्टाइल करता है, बट मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों के हैं. A chemical fertilizer is rich in particular plant nutrients such as nitrogen, phosphorus and potassium. Some example of fertilizer are, क्या क्या है फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास and NPK, that is nitrogen, phosphorus and potassium. In the previous class, in class 7th, I have able to read you the symbols of the chemical compounds. So please have a look on it, go through it. Understood? That is better for the further chapters. The chemical fertilizer and nutrient specific. This means the chemical fertilizer can provide only nitrogen. Chemical fertilizers में क्या होता है कि स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट होते हैं, तो वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जो चाहिए वो मिल जाएगा सॉइल को. द केमिकल फर्टिलाइजर हैव प्लांट न्यूट्रिएंट इन अ कंसनट्रेटेड फॉर्म. कंसनट्रेटेड क्या होता है, मिला हुआ. कंसनट्रेटेड मीन्स मिला, मतलब किसी चीज़ से मिला के बना जाता है. सो दे प्रोवाइड क्विक रिप्लेसमेंट टू द प्लांट न्यूट्रिएंट इन द सॉइल. और वो क्या करते हैं, तुरंत प्लांट को न्यूट्रिएंट तुरंत प्रोवाइड करते हैं इन अ फ्यू डेज. मैन्योर क्या करता है, टाइम लेगा. सबसे बड़ी बात, फर्टिलाइजर में क्या है, कंसनट्रेटेड है, कई केमिकल्स मिले हुए हैं, तो वो तुरंत क्या करते हैं, रिप्लेनिश कर देते हैं. सो केमिकल फर्टिलाइजर हैव हाई सॉल्युबिलिटी वाटर.
और वो बहुत ईजिली पानी में घुल जाते हैं। आप खाद, जैसे काऊ डंग की खाद बनती है मैन्योर, आप उसको पानी में घोलिए, जितने देर घोलिए, लेकिन कभी वो घुलेगी नहीं। बट फर्टिलाइजर क्या होता है, पानी में सॉल्यूबल होता है, घुल जाता है, सो दे आर इजिली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, और वो प्लांट्स इजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स आर मेड इन द फैक्ट्री। Chemical fertilizer is easy to transport, store and handle. They are easy to transport, store and handle. These are the chemical fertilizer. Have a look on it. This is the figure. A farmer is standing and just spreading the chemical fertilizer into his field. बिकॉज दे कम इन अ बैग, क्यों स्टोर और हैंडल करने में ईजी होता है, दे कम इन द बैग। द केमिकल फर्टिलाइजर एब्जॉर्ब मॉइस्चर वेरी क्विकली, मॉइस्चर बहुत ईजिली वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड पैक्ड इन एयर टाइट बैग, एयर टाइट बैग में पैक होते हैं, तो एयर नहीं उसमें घुसे, मतलब अगर कहीं रखा गया तो मॉइस्चर से ख़राब नहीं होगा। द केमिकल फर्टिलाइजर कैन बी अप्लाइड बिफोर सोइंग द फील्ड, बिना मतलब सोइंग मैंने आपको बताया था, टू पुट अ सीड, put a seed in the field is the process in which seed are sown in the field is known as sowing. तो सोन करने से पहले फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग इरिगेशन और स्प्रे ऑन स्टैंडिंग क्रॉप, और जब क्रॉप्स बड़े बड़े होकर स्टैंड हो जाए तो उस समय भी फर्टिलाइजर्स क्या हो सकते हैं, स्प्रे किए जा सकते हैं। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प द फार्मर टू गेट बेटर यील्ड, अच्छे क्रॉप्स उससे ग्रो होते हैं, सच एज व्हीट, पेडी एंड मेज। Paddy or rice are the same, and maize. The excessive use of fertilizer is harmful too. फर्टिलाइजर यूज करना ठीक है, लेकिन अगर वो एक्सेसिव यूज हो रहा है तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट कैन बी हार्म टू द प्लांट एंड फॉर अस ऑल्सो, बिकॉज वी गेट द क्रॉप्स टू ईट. सो द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर चेंजेस द केमिकल नेचर ऑफ द सॉइल एंड मेक सॉइल लेस फर्टाइल. केमिकल नेचर उसके चेंज कर देते हैं. ज़्यादा एक्सेसिव यूज होगा तो रिएक्शन होगा तो क्या होता है, धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जाती है. फॉर एग्जाम्पल, द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन मेक द सॉइल हाईली एसिडिक और एलाइक. एसिडिक बहुत हो सकता है, एलाइक हो सकता है. द हाईली एसिडिक और एलाइक सॉइल बिकेम लेस फर्टाइल. और जितने एसिडिक या एलाइक सॉइल हो जाएंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे एसिडिक और एलाइक मीन्स बेसिक, या तो बहुत एसिडिक हो जाए या अगर बेसिक हो जाए तो क्या होगा, धीरे धीरे सॉइल क्या होगा, लेस फर्टाइल हो जाएंगे, उसकी उपजाऊपन क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा. सेकेंड इज पेज नंबर 9. सेकेंड पॉइंट इज द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन कॉज वाटर पोल्यूशन, पॉन्ड, लेक्स एंड रिवर ऑल्सो. In order to maintain the fertility of the soil, we should substitute some of the fertilizer by organic manure. क्या करना चाहिए ऑर्गेनिक मैन्योर का, we should substitute some of the fertilizer by organic manure or leaves of the field to follow. क्या करना चाहिए कि कुछ दिन कल्टिवेटेड रहना चाहिए, मतलब एक साल हमने उसमें फील्ड में क्रॉप्स शोन की, दूसरे साल कोई वेजिटेबल्स लगा लें जो उतना न्यूट्रिएंट ना लेते हो, तीसरे साल कुछ और लगा लीजिए, फिर नेक्स्ट ईयर फिर क्रॉप्स लगा लीजिए सेम क्रॉप. तो इस तरह से क्या होगा, या एक साल हमने छोड़ दिया फील्ड को, उसमें कोई भी क्रॉप नहीं सो की, तो उससे क्या होगा, उसकी जो न्यूट्रिएंट है वो उसमें वापस आ जाएंगे इन बिटवीन टू क्रॉप. When the field is kept uncultivated for some time, the fertility is restored naturally. और उसकी fertility अपने आप क्या होगी, restored हो जाएगी. Now here our table is given. Differences between manure and fertilizers. Have a look on this table. A manure is a natural substance obtained by the decomposition of animal waste like cow dung, human waste and plant reduce. And manure किससे बनता है, नेचुरल सब्सटेंस से बनता है, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स वेस्ट. फर्टिलाइजर्स किससे बनते हैं, सॉल्ट और ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं. मैन्योर इज नॉट वेरी रिच इन एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस. मैन्योर बहुत रिच नहीं होता बट फर्टिलाइजर रिच होते हैं. मैन्योर प्रोवाइड लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस टू द सॉइल. मैन्योर ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करता है, ह्यूमस. फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल. मैन्योर इज ऑब्जर्व स्लोली बाय द प्लांट बिकॉज इट इज़ नॉट मच सॉल्यूबल. वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है, इसलिए प्लांट इसको बहुत धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते हैं. बट फर्टिलाइजर सॉइल में सॉल्यूबल होता है और प्लांट ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं. मैन्योर फील्ड में प्रिपेयर होता है एंड फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर इन द फैक्ट्री. सो जस्ट गो थ्रू पेज नंबर 9, रिवाइज इट प्रॉपरली, हैव अ गुड रिविजन फॉर द एक्सप्लेनेशन. हैव अ गुड डे, बाय बाय.